Morning, sir. So, what's the topic for today's discussion? Good morning, sir. Good morning, sir. So today we have no discussion. Morning, sir. We didn't tell that topic, sir. No. सर Hello. ये सर आपने टॉपिक नहीं दिया था आज का कुछ भी. Yeah, I think in the last session I have given some topic. But at least Thursday, no? Oh, sorry, No, Friday, sir, no? Friday. Yes, sir. Yes, yes. On every Friday we have discussion. So I think I have already given the topic. So you have not got the topic, right? Yes, sir. So no problem. So for the ADBMS part also, I think we have not got any topic. Okay, now I'm Yes, giving sir. in ADMS, the topic to be discussed is locking and the concurrency control mechanism. For today, okay. Okay, sir. Yes, sir. And the next on the means I today we have 16, no, 16, okay. So coming Friday, okay, not this Friday, coming Friday you on the Sir, 24th coming Friday, puja, sir. Puja. Yes, sir. Okay, very Sir. good. Yes, sir. Puja, sir. So I think 22 from 22 Puja started, right? Yes, sir. Okay, so very good. So we'll get some holidays, but I don't think that this time Yes, sir. we can enjoy it in fullest manner. But still, पूजा तो पूजा ही है ना. चलो ठीक है, तो फिर कमिंग फ्राइडे के लिए अभी मैं टॉपिक नहीं देता हूँ क्योंकि पूजा है, बिल्कुल सब लोग एंजॉय करना. तो आज का जो एडीबीएमएस का टॉपिक है ये मैंने दे दिया हूँ. फ्राइडे में मिस नहीं होना चाहिए. राजेश और गौतम, अगर मैं भूल भी जाऊँ कोई टॉपिक देना, ठीक है, तो सर आप नहीं, लोग आज मतलब प्रेजेंटेशन था ना सर, हाँ सर पूनम सर का. प्रेजेंटेशन मैंने बोल दिया था कि अभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं है, तो आई थिंक इट विल बी हाँ सर, वो पोस्टपोन. तो कल शाम 7-8 बजे करीब मतलब पूनम सर ने मेल किया था, तो 19 को करेंगे बोल के. तो इससे पहले सर आपने क्लास में कुछ टॉपिक ही नहीं दिया प्रेजेंटेशन के लिए. हाँ हाँ हाँ, सुनो, ठीक है, वो बोल दिया था मैंने. एक्चुअली वो प्रिपेयर नहीं थे ना आप लोग पूरा, तो इसलिए और यस दो सर. तीन दिन मिल जाए तो आप लोग शायद अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे. यस सर. तो मुझे याद दिला दिया करो कि कभी ये जो फ्राइडे वाला है हम इसको स्पेशली डिस्कशन के लिए रखेंगे, ठीक है. टिल द एंड ऑफ ठीक द है सर. सेशन विल कीप यस इट सर. फॉर एआई एंड एडीवीएस. और अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप लोग याद दिला देना, ठीक है. ओके चलो सर. ये इसका एडीवीएस का टॉपिक हो गया, बाद में अभी क्लास ले लेता हूँ. हाँ, आई हाँ स्टार्ट सर. वन टॉपिक नाउ, एआई का, ठीक है. यस इज इट सर. ओके? यस सर. यस सर. Okay, so in the last lecture what we have discussed, let's have a brief review on it. And that is about what? First, we have completed the blind search techniques, right? There we have gone through different algorithms like breadth first search, depth first search, and then we have depth limited search, and then we have iterative deepening search. Okay, so different algorithms we have gone through. After that, we come to a new topic that is known as informed search technique. Right.
But one thing I have noticed that whatever the questions I'm asking, not all the students are answering. Okay, few of them, of course, you are answering the question, but try to attempt that. ओके नहीं तो मैं किसके लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोग उसको नोट डाउन करके जाओगे आंसर देने की कोशिश करोगे तो आप लोगों के लिए फायदा है ना तो प्लीज ट्राई टू गिव आंसर सो लास्ट क्लास में मैंने इनफॉर्म सर्च टेक्निक इंट्रोडक्शन पार्ट और ये उसके बाद ह्यूरिस्टिक फंक्शंस क्या है ये भी बता दिया था राइट उसके बाद मैंने ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट ये क्या है ये डिस्कस किया था राइट so you have seen that the nodes which have not yet expanded they are in open list but the nodes which have been expanded this means what we have generated the successors out of it means the children out of it then we put them in closed list right and based on that actually we carry out this informed search techniques so उसके बाद हमने देखा कि ये जो नोट्स हैं इसमें से किस नोट को सिलेक्ट करना है विच नोट वी हैव टू सिलेक्ट उसके लिए हम एक फंक्शंस यूज करते हैं दैट फंक्शंस इज नोन एज व्हाट कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन अरे व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शंस आवाज सुनाई दे रहा है ना मेरा am I audible to all of you or not ऑडिबल यस तो फिर आप लोग मुझे ऑडिबल नहीं हो रहे हैं कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो शायद आज कितने हैं स्टूडेंट्स लेट मी चेक फाइव है ना क्लास में कितने हैं आज 5 स्टूडेंट्स नहीं 25 सॉरी 25 है ओके 25 से 25 से एटलीस्ट 23 आंसर्स मुझे मिलना चाहिए था कुछ भी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं मैं ही बता देता हूँ ठीक है तो उसका नाम था ह्यूरिस्टिक इसलिए मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन पूछता हूँ जवाब दे दिया करो वहाँ पे कमेंट पे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा ठीक है ऐसा चीज तो नहीं है कि जो हम ये पढ़ रहे कोई काम का नहीं है ना those what we are studying is very important so you at least you have to know the technical terms so that function is known as heuristic functions by which we determine the cost and accordingly we determine what the node which to be selected just a minute please hello I'm in Yes, the sir. class I'm in a class who is that কোনে কৈছা ওকে ওকে ইউ উইল গেট তুমি এটা কাম কৰা তুমি ট্ৰাই কৰা যদি নহয় তেনে Okay. Okay, okay. No, don't worry, Divyansh. You will get the recorded lecture. Okay. And, I got that you have some genuine problem with the network, so we can manage that. Do we na, Rajesh? यस सर यस सर মই বুজি পালো চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ প্ৰবলেমটো যিহেতুকে জেনুইন so you'll get the attendance don't worry and the recorded lecture you'll get it okay so okay 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 you try keep trying but if you can't then you'll get a lecture okay and then the attendance don't worry okay
My screen is visible, yeah, right? Yes, sir. Okay. अरे यार क्या कर दिया beginning. Okay. बहुत आगे जाना. Don't worry. So मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जो फंक्शन है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये सारे नोड्स हैं. इस नोड्स का क्या है, गोल तक पहुंचने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा, है ना. ये इट विल टेक सम, इट विल कॉस्ट समथिंग मींस सम वैल्यू that you need to pay to reach the goal. You means what we are referring, the artificial intelligence agent. ठीक है, एजेंट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ कॉस्ट ये करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. तो ये कॉस्ट को हम किससे इवेलुएट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ह्यूरिस्टिक फंक्शन. तो हर एक नोड का एक एक कॉस्ट होगा. तो हम क्या करेंगे, जिस नोड से मतलब हम बोल रहा हूँ, बट ये मान लेना कि जो मैं बोल रहा हूँ ये किसके बारे में बोल रहा हूँ, आई एम रिफरिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट. ठीक है, तो वो क्या करेगा, जिसका वैल्यू कम है, ठीक है, मतलब जहां से जिस नोड से गोल तक पहुंचने के लिए कम कॉस्ट लगेगा, तो उसको ये सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, so that is the main technique behind this informed search technique and that heuristic functions. क्या लिखा है हमने, heuristic is a function which is used in informed search and it finds the most promising path. It takes the current state of the agent as its input and produces the estimation of how close agent is from the goal. एक एजेंट जो है ना, एक करंट नोड में है, उससे कितना नजदीक है ये गोल, मतलब कितना डिस्टेंस दूरी में है ये गोल, ये चीज कैलकुलेट करते क्या, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस. ठीक है, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस एस्टिमेट हाउ क्लोज स्टेट इज टू द गोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एशन. एशन के जरिए हम इसको डिनोट करेंगे. एंड इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑप्टिमल पाथ विद द पेयर ऑफ स्टेट्स. ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बोला था कि द वैल्यू ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, ये पूछा गया है पहले एग्जाम में. ठीक है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. और एक चीज जो नेट में भी पूछा था कि एच एन इज लेस देन इक्वल टू एच स्टार एन, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी पूछा था, बट आई हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन. क्या है ये, एच एन स्टैंड्स फॉर द ह्यूरिस्टिक कॉस्ट एंड एच स्टार एन इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट. तो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट का वैल्यू हमेशा एस्टिमेटेड कॉस्ट के बराबर या उससे कम होगा. एच एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एच स्टार एन. प्लीज नोट इट. ठीक है, पिछले क्लास में अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया नहीं था तो अभी करके रखो. ठीक है, नाउ जो हम अभी पढ़ रहे थे, मतलब पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने ओपन और क्लोज लिस्ट के बारे में. तो ये सारे चीज हम प्योर ह्यूरिस्टिक सर्च के बारे में बताया था. दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम. So do note it that pure heuristic search is the simplest form of heuristic search algorithm. It expands the nodes based on the value of ASIN and maintain two lists open and closed lists. और open and closed list क्या है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अभी तक. I think about the open and closed list, the concepts clear to everybody. Is it? Yes or no, please? Yes, sir. One yes. What about the other 23? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. ঠিক আছে দিয়া, তিনটামান ইয়েছ পালো, মানি ল'ম যে 23টাই কৈছে. ओके, नो प्रॉब्लम. देन उसके बाद क्या है, दो एल्गोरिथम है बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एल्गोरिथम हमने डिस्कशन के जरिए ऑलरेडी कवर किया था, बट आई विल गो थ्रू इट. दैट इज बेस्ट स्पार्स सर्च एंड ए स्टार एल्गोरिथम. एंड बिलीव मी, these two algorithms are the most popular and important algorithm in the field of artificial intelligence and robotics. Okay, so base first search and A-star algorithm. Now, greedy search. We are using the term greedy here. Can anybody
Sir, your voice is cracking. या अच्छा, मेरा वॉइस क्या ब्रेक हो रहा है. ओके, see Victor, I can't do anything on that because this is the university network. I'm not in the home now. घर में सर नहीं सर, मेरे ख्याल से विक्टर का प्रॉब्लम है सर, हम लोग को ठीक ठाक सुनाई दे रहे हैं. अरे विक्टर, तो बाकियों को क्यों प्रॉब्लम दे रहे हो? रुको, मेरे मैं ख्याल से विक्टर विक्टर का नेटवर्क इशू है, हम लोग को तो विक्टर को ठीक ठाक सुनाई दे रहे सही बात है, मैं विक्टर को क्लास से निकाल देता हूँ. रुको. ठीक है विक्टर, चलो कोई बात नहीं. थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना क्योंकि मैं अभी घर में नहीं हूँ ना, यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यहाँ नेटवर्क थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा इधर से उधर हो जाता है, तो इसलिए वॉइस ब्रेकिंग ये सब प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, मैं अपने नेट से भी कनेक्ट करूँ तो भी यहाँ जियो का ऐसा ही दिखा. बट मैंने देखा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, घर से जब लिया था क्लासेस तब वहाँ नेटवर्क स्टेबिलिटी था, तो ऐसा नहीं हुआ था. ठीक है, तो प्लीज बियर विद दैट. रिकॉर्डेड लेक्चर है ही, और कुछ चीज होगा तो बोलना, फिर से डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर यूजिंग द टर्म ग्रीडी सर्च. एक टर्म यूज किया हूँ ग्रीडी. क्यों? व्हाई वी आर यूजिंग ग्रीडी इन फ्रंट ऑफ दिस एल्गोरिथम? कैन एनीबॉडी टेल मी? Just try. Don't worry. I will give the answer. सर. ग्रीडी का मतलब तो सर लालची होता है, मतलब ऐसे सोचा है वही तो. वही वही लालची होता है. तो एक बेस्ट चीज. फर्स्ट सर्च मतलब तो सिर्फ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ही चाहिए, जैसे हर टाइम बेस्ट फर्स्ट सर्च ही चाहिए, जैसे सर हर टाइम जो सामान ढूंढ रहा है वो जल्दी मिल जाना चाहिए, सर्चिंग कर रहा है इसमें. वेरी गुड राजेश, वेरी गुड. गुड एक्सप्लेनेशन. सर, तो ये जो लालची सार्स है, ठीक है, ये क्या करता है, क्यों लालची वर्ड यूज कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ. हमारे कंप्यूटर साइंस में some algorithms are known as greedy algorithms. मतलब लालची एल्गोरिथम, उसका मतलब ये है वो सेटिस्फाई कभी नहीं रहता है. आप उसको बेस से बेस दे दो, ठीक है, मतलब अच्छा जो भी है वो दे दो, फिर भी वो कोशिश करेगा कि उससे बेहतर जो है उसको फाइंड आउट कर दे. और ये हमारे लिए सही है क्योंकि हम एआई एजेंट बता यूज कर रहे हैं, उसमें एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं. वो क्या करेगा, सपोज अभी बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, देन स्टिल इट ट्राइज टू फाइंड आउट बेटर वन देन दिस बेस्ट सॉल्यूशन. मैंने क्या बोला, बेटर देन द बेस्ट. सो सुनने में थोड़ा अजीब है, पर फिर भी क्या है, ये हमेशा क्या करते हैं, आपका जितना हो सके अभी जो करंट सॉल्यूशन है उससे भी क्या और ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, या उससे भी कोई और बेहतरीन सॉल्यूशन मिल जाए, तो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. जैसे आपका यहाँ सर्चिंग की बात करें तो वो कम कॉस्ट में, ठीक है, विथ लो कॉस्ट फास्ट सॉल्यूशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे. और वैसा ही एक एल्गोरिथम है आपका बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम. तो 1 मार्क एमसीक्यू आ सकता है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च किस में बिलोंग करता है. इट्स अ काइंड ऑफ ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम. नाउ you tell me whether this lalsi word or word in terms of computer science is clear to you or not. यस Clear? सर. ठीक है, तो कभी कभी लालची बनना भी सही रहता है, ये हमने देख लिया. कंप्यूटर साइंस में ग्रीडी एल्गोरिथम्स आर वेरी वेल वेलकम बाय अस. ओके, ठीक है, तो फिर we have got to know that this base first search algorithm is a greedy search algorithm. But ये अलग चीज नहीं है. This is a combination of two algorithms that we already gone through. ये जो बेस फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, ये हमने अभी अभी आई थिंक पिछले कोई लेक्चर में पढ़ा था. डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम और ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बनाया है, बेस फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम. रिमेंबर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बेस फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ये इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ठीक है, एंड दिस यूसेस ऑफ कोर्स ह्यूरिस्टिक फंक्शंस एंड सर्च. ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करेगा, उसके बेस जरिए वो वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेगा कहाँ से सबसे ज़्यादा सही पाथ मिलेगा और सर्च कंडक्ट करेंगे. ठीक है, सो बेस्ट फर्स्ट सर्च अलाउस अस टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ बोथ दिस एल्गोरिथम. डेप्थ फर्स्ट सर्च का बेनिफिट क्या है वो ले लेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम का बेनिफिट क्या है, ये दोनों का एडवांटेजेस पार्ट्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. ठीक है, so with the help of base first search, at each stage
we can choose the most promising node. And in the base first search algorithm, we expand the node which is closest to the goal node, and the closest cost is estimated by the heuristic function fn. ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ ये याद रखना। एक बार इसके नहीं, इसके बाद और एक एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा, वहां पे उसके ऊपर एक क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो ये जो फंक्शन सिंबल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So for the base first search, Fn is equal to Zn, and this Zn is the estimated cost from node n to the goal. मतलब कार्य नोड जो है वहां से आपका क्या है, गोल तक पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। The estimated cost from node n to the goal, that will be given by your Zn. Right, and this greedy base first search algorithm, here we use or we take the help of one data structure that is known as priority queue. And I know you guys already aware with those terms, that stack and queue, so we have already discussed in the case of depth first search and breadth first search. But do remember that in the case of base first search algorithm, the data structure we use is priority queue, not queue. It is priority queue, जहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक प्रेफरेंस और एक प्रायोरिटी वैल्यू रहते हैं, एंड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी वैल्यू वी keep on popping up those values from that queue. Right. So today's first question to all of you: what data structure we use in base first search? Okay, and define it, how it works. आज पहला जो क्वेश्चन है यह है कि क्या डाटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं बेस फर्स्ट सर्च में, और उसको डिफाइन करो वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, now coming to the algorithm part, is a base first search algorithm that consists of 7 steps. Let's go each step in details. Step 1, place the starting node into the open list. Of course, we are going to start the search, right? So of course you need to begin from somewhere, and that is none other than your root. अब यहाँ पे मैं रूट को क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग नोड। अब जब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मतलब अभी तक आपने क्या नहीं किया है, आपने उसको इवेलुएट नहीं किया है। सो इट इज नॉट येट इवेलुएटेड, सो यू कैन पुट इट इन द इनटू द ओपन लिस्ट। ओके, जब इवेलुएट कर दोगे तो किस लिस्ट में मैं प्लेस करूंगा? आफ्टर इवेलुएटिंग इट, वेयर वी विल प्लेस दैट नोड? कम ऑन, क्विकली आंसर दिस। After evaluating the node, in which list we will place that node? It's closed list, yeah, because when we evaluated it, means we have generated the success. So we cannot again regenerate some successor out of it. So we will place it in the closed list. Now the starting node should be placed into the open list for the first time. Now coming to the step 2. If the open list is empty, stop and return fail. ओपन लिस्ट में कोई नोट नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप सर्च को बिगिन ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई भी नोट मिल ही नहीं रहा है जहां से आपको स्टार्ट करना है। आप फेसबुक का देख लो, सपोज किसी नाम, सपोज यू वांट टू सर्च विक्टर, ठीक है? सब लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज? Am I audible or not? हाँ सर, यस सर, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी आ जाएगा फट से आंसर। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो चुप रहते हो। हाँ तो कोई बात नहीं। फेसबुक में सपोज आप टाइप करते हो विक्टर, ठीक है, नहीं सर्चिंग में, और विक्टर नाम का बंदा कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो क्या देखा देगा? सर्च फेल दिखाएगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. Yes, No sir. response. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या? ओपन लिस्ट में अब कोई नोट्स नहीं। ये जो चीज है ना, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस सब में एक चीज हम यूज करते हैं, वो है ग्राफ थ्योरी। ओके, यहाँ पे ग्राफ थ्योरी के बेसिस पे ही हम सर्चिंग कंडक्ट करते हैं, याद रखना इस चीज, ठीक है? सो इफ ओपन लिस्ट इज एम्प्टी, देन विल स्टॉप एंड रिटर्न फेलियर। बिगिन करने के लिए कोई नोड है ही नहीं तो कैसे सर्च कंडक्ट करोगे? तो यू हैव टू स्टॉप एंड रिटर्न फेलियर। This is what the step 2 says to us. Okay. Now step 1 complete, step 2 complete. Now I'm coming to the step 3. Now remove the node n from the open list which has the lowest value of Hn
and place it in the closed list. Now, अब स्टेप 3 में कब आएंगे हम? जब स्टेप 2 क्या है? सेटिस्फाई नहीं हुआ. If it is the step 2 is not satisfied, so we'll come to the step 3, right? So क्योंकि इसका मतलब ये है कि ओपन लिस्ट में बहुत सारे नोट्स हैं. आप उस बहुत सारे नोट्स में से एक नोट को उठाना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. आप किस नोट को उठाओगे? जिसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन का वैल्यू सबसे कम हो, राइट? और उसको इवैल्यूएट करके कहाँ पुट कर दोगे? क्लोज लिस्ट में. That's what the step 3 says to us. Remove the node n from the open list, which has the lowest value of Sn, and now place it in the closed list. ठीक है? Now, after step 3, we'll come to the step 4. Then, what we'll do, expand the node n and generate all the successors of the node n. अब इस नोड को जो हमने उठाया था, उसको क्या किया हमने? सक्सेसर्स, जितने भी सक्सेसर्स था उसको जनरेट किया. सक्सेसर्स मतलब क्या है? सिंपल योर चाइल्ड नोड्स, दैट्स नोड चाइल्ड्स. ओके. देन step 5, check each successor of node n and find whether any node is a goal node or not. If any successor node is a goal node, then return success, terminate the search, else proceed to the step 6. Now you have generated all the successors of node n. आपने क्या किया? उस node n का पूरा successors जितना भी है, मतलब child node सारे nodes generate कर लिया. अब आप ये चेक करोगे कि इनमें से कोई एक गोल नोड है या नहीं, राइट? अगर गोल नोड है, मतलब ये जो सक्सेसर्स आपको मिला उसमें से कोई एक गोल नोड है, तो क्या करोगे? ठीक है, हमें नोड मिल गया भाई, हम जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, तो सक्सेस एंड टर्मिनेट द सर्च. ठीक है. अदरवाइज आप और एक स्टेप जो है स्टेप 6 वहां पे आ जाओगे, राइट? So that is what step 5 instructs us to do. Now I'm coming to the step 6. For each successor node, the algorithm checks for evaluation function fn and then check if the node has been either open or closed list. If the node has not been in those both lists, then we will add it to the open list. देखो, एक चीज को कोशिश करना ग्राफ से ड्रॉ करके जाओ, ठीक है? स्टेप 5 हमें क्या बोलते हैं कि अगर इस सक्सेसर में कोई एक गोल नोड है तो हमें सक्सेस मिल गया और आई विल टर्मिनेट द सर्च. सपोज नहीं मिला तो हम कहाँ पे आ गए? स्टेप 6 में. अब यहाँ पे क्या किया? हर एक नोड को चेक करोगे कि क्या ये ऑलरेडी ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट में है या नहीं. You know that open list contains those nodes which are not yet being evaluated and closed list which been already evaluated. राइट. सो ये जो सक्सेसर नोड्स हैं, इसका भी तो हमें एक चीज निकालना पड़ेगा. क्या है वो? इवैल्यूएशन फंक्शन, मतलब जो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सपोज आपको 2 सक्सेसर नोड मिल गया. मैं फिर से वो ग्राफ कंसीडर करता हूँ, ठीक है? लेट मी कंसीडर अ ग्राफ अगेन. ये सपोज मैंने ए का सक्सेसर्स फाइंड आउट किया सी एंड डी. आप ये को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एच सी के लिए भी मतलब सी के लिए भी एच सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी के लिए भी एच डी फाइंड आउट करना पड़ेगा. एच सी का मतलब ये है सी से गोल नोड तक जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा. एच डी का वैल्यू का मतलब ये है कि डी से जी तक पहुंचने के लिए, गोल नोड तक पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा. ये फंक्शंस का वैल्यू आप निकाल लोगे और ये भी देखोगे क्या वो ऑलरेडी इवैल्यूएटेड है, ऑलरेडी ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट इनमें से किसी एक में है. अगर नहीं है तो उसको आप क्या करोगे? ओपन लिस्ट में करोगे, ठीक है? इफ इट इज आइदर इन द ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट इट इज ओके, बट इफ इट इज नॉट इन बोथ ऑफ द लिस्ट, देन व्हाट वुड हैपन? You have to keep it in the open list and then start these things again. So what I have stated, we need to add it to the open list only, not in the closed list. Can you tell me why? Can you tell me why? The reason. सर ये ओपन लिस्ट सर हम लोग तब जब ओपन लिस्ट में ऐड करेंगे तभी जाके हम लोग उसमें से सर्च कर सकते हैं डेटा.
राइट, अभी जाके तो हम उसको इवैल्यूएट करके उसको क्लोज लिस्ट में पुट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। तो हमने उसको चेक किया क्या वो दोनों इन दोनों लिस्ट में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको ओपन लिस्ट में रखेंगे, क्लोज लिस्ट में नहीं। राइट, देन ये सारे प्रोसेस फिर से रिपीट होता रहेगा जब तक हमें अपना जो की नोड जिसको हम सर्च कर रहे हैं मिल ना जाए। ठीक है, सो स्टेप 7 सेज दैट रिटर्न टू स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 तक आ जाओ। अगर वो एम्प्टी है तो स्टॉप, नहीं तो फिर से ये जितना भी स्टेप 3, 4, 5, 6 है वो चीज क्या करोगे, रिपीटेडली करते जाओगे कब तक, जब तक आपको गोल नोड नहीं मिल जाए। ठीक है, यू विल कम बैक टू द स्टेप 2 एंड यू विल रिपीट द स्टेप्स अगेन एंड अगेन until you get the goal node. This is the base part search technique. I hope this is clear to you. Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, यार, sir. पीछे कोई एक स्टूडेंट फोन कर। अनुपम, क्या आप लोगों में से कोई है? हाँ, No, sir. Anupam नहीं, अंशुमान है. हाँ सर, अंशुमान में आते हैं सर। ओके, लेट मी। हेलो, हाँ, actually I'm in the class now. Can you call me after 10 or 15 minutes? Okay, oh, अच्छा, अनुपम, okay, अनुपम Chen, na, the machine learning paper. Oh, okay, no problem. How's your paper? From? Okay, good, very good. I hope it's. Okay, let me check it. If you have uploaded, then of course it will be succeeded. Let me check. Anupam, I'll inform you after 5 minutes. Is it okay? Okay, sir. Okay, bye. क्या बोल रहा था यार? Actually, I was conducting an exam now. ये एग्जाम एक हो रहा है, तो एग्जाम के बीच में क्लास भी ले रहा हूँ। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बेस फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का हर एक स्टेप समझ में आ गया, ये बताओ मुझे। Yes, sir. ठीक है, मैं Yes, और sir. एक नया एल्गोरिथम आज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यही काफी है। ये समझ लो तो आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ओपन लिस्ट, क्लोज लिस्ट, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ये सारी चीज समझ में आ गया तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखो एक एग्जांपल में दिया हूँ। नाउ आई कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट, जो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी जन। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ले लिया? देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, एस से ए बी सी डी एफ एच 1 जी, हमें जी तक जाना है। गोल नोड क्या है ना, उसको वहां तक पहुंचना है। ठीक है, अब देखना हर एक नोड के लिए कुछ एशियन का वैल्यू दिया गया है। 12 4, ए के लिए 12 मतलब क्या है, एस ए इज 12, एस बी इज 4, एस सी इज 7, लाइक दैट, एस जी इज 0। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन मैं सभी जन को पूछना चाहता हूँ कि ये एच जी इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ? A very simple question to all of you. You tell me why AC is equal to 0. So I think हम लोग को गोल नोड मिल गया इसलिए सच 0 हो गया. अरे भाई देखो, सही बात है, सही गेस किया। देखो, आपको गुवाहाटी जाना था, आईएसबीटी गुवाहाटी जाना था, और आप आईएसबीटी गुवाहाटी में हो। ठीक है, आपको और क्या कॉस्ट लगेगा क्या? जहाँ जाना चाहिए था आपको वहीं पे हो, राइट? गोल नोड में ही हो तो गोल नोड से गोल नोड का क्या होगा वैल्यू? 0 ही होगा ना। एशियन का वैल्यू 0 ही होगा, एच जी का वैल्यू 0 ही होगा ना। एच जी क्या दे रहा है, उस पार्टिकुलर नोड से गोल तक जाने में कितना कॉस्ट लगेगा वही दे रहा है, वही मतलब आपको कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो एच जी इज इक्वल टू 0 बिकॉज यू आर ऑन द गोल इटसेल्फ। ठीक है, ये सिंपल सिंपल फैक्ट सबको आना चाहिए। ठीक है, नाउ राजेश, इज दिस क्लियर? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम दो लिस्ट, ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट कंसीडर करेंगे और उसमें पुट आउट करेंगे। अब देखो, S to B, B to F, F to C, कुछ वैल्यूज रखा हूँ।
कैसे करना हो ये देखो, इनिशियलाइजेशन ओपन ए बी क्लोज एस। मैं क्यों लिखा, क्योंकि देखो सॉरी, एस को मैंने क्या किया, इवेलुएट किया। सबसे पहले एस ही था ओपन में, तो आप क्या आ गया ए बी, और एस कहाँ पे गया, अभी कहाँ पे चला गया, ये क्लोज। ठीक है, तो क्लोज एस। नाउ आइटरेशन 1, आप ए बी में से किसी एक को चूज करना है, तो किसको चूज करोगे? सर बी में जाने के लिए बी में तो गोल नोड तो बी में है ना सर। एक बार फिर से देख लो और सभी जन को पूछना, एक दो स्टूडेंट्स ही मुझे जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों का क्या हो रहा है भाई? हम्म, ऑफ कोर्स राजेश इज करेक्ट। सी, यहाँ साफ साफ दिखाई, क्यों बाकी लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, जो जवाब नहीं दे रहे? ए का वैल्यू देखो कितना है, 12, वेरी हाई। बी तो वो ए को वही रख दो, बी को इवेलुएट कर दो। बी को इवेलुएट किया मतलब क्या हो गया, बी को कहाँ पुट किया, क्लोज लिस्ट में ना। यू हैव इवेलुएटेड बी, सो यू नीड टू पुट बी इन द क्लोज लिस्ट। सो ओपन लिस्ट में अभी क्या बाकी रह गया, ए, और आपने क्लोज लिस्ट में क्या रख दिया, B. So in the iteration 1, we have open A and closed A, B, as B. I hope this is clear. Now, B मिला मुझे, तो B का क्या है, E और F है. So open list will contain what? A, E, F, right? Open list में क्या मिल गया हमें, ये जो A, E, F ये हो गया, आ गया, और क्लोज में S and B. अब E, F में से किसको चूज करना है? Now you need to decide which one among E and F to be chosen. Of course, क्या होगा इसमें? F. F Very good. So F को choose किया तो now F being evaluated and it comes under close. So now in the open, what we will have, the successors of F also, that is I and G. So open is I, G, E, A and close is S, B, F. Right. So you know that G is our goal, because we say we don't have any idea, but you have seen that ace of Z is equal to 0. तो I Z में से किसको चूज करोगे तो फिर? G. Z. So G. very good. So close list is S, B, F, Z and open is I, A. So we have got the part that is S to B, B to F, F to Z, and this is the solution, final solution for part as being given or as being got or obtained with the help of base sparse search algorithm. Now you tell me, all of you, please tell me whether this example is clear to you or not. Yes, sir. Clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so very good. So I have seen that all of you got this. Very good. Okay, one question may come as a numerical from this. Now, time complexity, it is big O of BM, and space complexity, again BM, so you don't need to worry about. And it is complete or not, BT based first search is also incomplete in nature, because sometimes it may stuck into a एच। ओके, ग्रीडी नेचर के कारण वो सारे नोट चूज करता रहेगा जो जिसमें वैल्यू कम है, बट वो वैल्यू कम है बट उसमें कभी कभी क्या हो गया, इनकम्प्लीट एच के कारण वो एक इन्फिनाइट तक ले जाएंगे और इसके कारण वो कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट मतलब क्या है, वो उस सर्च स्पेस में ही मिलेगा, मतलब वो सर्च स्पेस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये आप नहीं बोल सकते, इसलिए कंप्लीट नहीं है। प्लीज नो दिस पार्ट द पॉइंट, greedy face search based search or greedy based first search is not complete. Okay, then also it is not optimal. We may have some algorithm which may provide you the solution much faster than this one, but still this is a very good algorithm and a very popular one, no doubt. Okay, so this is all about our base first search algorithm.
These are the facts that you need to know, and that's sufficient. So I think that's enough for today's class. Okay, sir. So, Right. okay, sir. So DBMS का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लो. क्या दिया टॉपिक दिया मैंने? Sir, locking and control, concurrency control. हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है. और जितना हो सके एटलीस्ट 1-2 स्लाइड जो भी है सभी जन कोशिश करना इंटरएक्टिवली प्रेजेंट करना, ठीक है. यस सर. सर ये सर अटेंडेंस शीट थोड़ा चेक कर लीजिए सर, क्योंकि कभी कभी कुछ डेटा नहीं होता ना सर. एक्चुअली क्या होता है ना, ये दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क. हाँ, कभी ओह. कभी कुछ वैल्यूज जो है ना वो हम मतलब नहीं, ऐसी इस क्लास में नहीं, मैं और 2-3 क्लास में देख चुका हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है. मैं 2 बार डाउनलोड कर रहा हूँ. यस सर. आज पर नेटवर्क स्टेबल है, आई थिंक आज मिल जाएगा आपको. यस सर. सर মোৰে অলপ স্যাৰ মাজে মাজে প্ৰবলেমটো দি থাকে স্যাৰ. দিব্যাংগ से কৈছা চাগে ন? স্যাৰ. হয় হয়, মই বুজি পাইছো. আচলতে তোমাৰ তাত নেটৱৰ্কৰ কিবা এটা প্ৰবলেম দি আছে চাগে, সেইটো কাৰণে হৈ যায়. স্যাৰ ছাতত কৰিলো স্যাৰ. ছাতৰ ওপৰত ধৰে চাগে, তেতিয়া নেটৱৰ্ক পোৱা যায়. ঠিক আছে, তুমি এইটো লেকচাৰটো পাই যাবা, যেতিয়া যিখিনি মিছ হৈছে সেইখিনি চাই ল'বা, ঠিক আছে. না স্যাৰ মিছ হোৱা নাই স্যাৰ, তেতিয়া আপোনাক ফোন কৰি মেলি তাৰপিছত ছাতত পাইছিলো ভালকে স্যাৰ কৰি ললো আৰু স্যাৰ. ओके गुड, थैंक यू सर. ठीक है. तो फिर बाकी लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम आएगा नेटवर्क से रिलेटेड, तो आप लोगों को इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है. तो यूनिवर्सिटी वाला है वो तो है ही, बट मैं अपनी तरफ से भी जो प्रोवाइड कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ लॉस ना हो. और क्वेश्चन आंसरिंग इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग एक्टिव रहो, ठीक है. जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लो तो वो याद रह जाता है. That is my main aim about this question answering. So try to participate. So we'll meet in the next session after lunch. Thank you. Yes sir. Thank you sir. थैंक यू सर. Thank you, sir.